जय जिनेन्द्र। मंगलमय मंगल करण वीतरागवे ज्ञान नमो तहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को कार जाते मिले समाज जग पावे निज पदराज पावे निज पदराज। ये ग्रंथ शेयर कर लीजिए। Swaraj, last time I think Gaurav ji was there and we were discussing Mangalacharan, reason for observing the Mangalacharan. So हमने यहाँ से start यहाँ तक खत्म किया था I think. राइट, मंगलाचरण करने का कारण। So we are discussing on Moksha Marga Prakasat, written by Pandit Toramal ji. So far we have discussed about the Swarup of 5 Parmestis. As you know, the Toramal ji is a very logical teacher, is a very logical scholar, and he is aware about the psychology, human psychology, or the student type psychology, or reader psychology. So in whole Granth, you will find that Todamal ji has embodied this Granth in such a manner which is understandable in very easy way by everyone. Not only understandable, but he has just divided the matter, subject matter, what he wants to explain to us in little parts. And if there is any question arising in our mind, so Pandit ji is giving answer. Is that question? Even he has just presenting this Granth as if some disciple, some shishya is sitting in front of him, and he's asking question and he's giving answer. But actually, there's no disciple, there's no shishya who is asking question. And Toramalji himself is a very good scholar, and he knows that what kind of questions may arise in the mind of anyone, any reader or srota regarding this. So he is giving answer, and you will find this Shali or this style in whole Granth. That's why he is just telling the reason of Mangalacharan. Mangalacharan karne ka karan. Here in English, purpose of observing benediction. The Mangalacharan karne ka kya karan hai. So last time we discussed about this topic, and Todamalji has just started this Mangalacharan karne ka karan by a question. So question is that here someone asked him, what is the purpose of benediction right in the beginning of the book? In Hindi, मंगलाचरण करने का क्या कारण है कि आपने उसको ग्रंथ के प्रारंभ में ही आपने मंगलाचरण किया है? So Pandit is giving here answer. Completing the book happily without any disturbance due to rise of evil
karma is object of performing valediction मंगलाचरण in the beginning. सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो और पाप के कारण कोई किसी प्रकार की बाधा पैदा ना हो, इसलिए यहाँ मंगलाचरण किया. Simple question, simple answer, but it is very common question which anyone can ask. आप क्यों मंगलाचरण कर रहे हैं? ये क्वेश्चन है. उत्तर बहुत छोटा सा दिया हमने, लेकिन कंप्लीट आंसर है. क्योंकि ग्रंथ की समाप्ति सुख से हो जाए और किसी प्रकार का कोई विघ्न ना हो, इसलिए हम यहाँ मंगलाचरण कर रहे हैं. देन देयर इज अ लॉजिक कि जो अन्नमति हैं वो मंगलाचरण नहीं करते हैं, तो वो मंगलाचरण नहीं करते, फिर भी तो उनका ग्रंथ समाप्त हो जाता है. तो फिर आपने कहा कि कोई विघ्न ना हो हमारे ग्रंथ. समाप्त हो जाए तो वैसे, इसलिए हम जो भी ग्रंथ करते हैं वो कषाय की मंदता के कारण से करते हैं, और हम ऐसे ग्रंथ की समाप्ति के लिए मंगलाचरण करते हैं. यदि मंगल ना करें तो मोह की तीव्रता रहे, तो ऐसा उत्तम कार्य क्यों बने. बहुत अच्छा आंसर दिया कि अगर हम ये मंगलाचरण ना करें तो मोह की तीव्रता रहेगी, और मोह की तीव्रता रहेगी तो वो कार्य कैसे बनेगा. तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में मंगलाचरण हमने इसलिए किया क्योंकि मोह की तीव्रता ना रहे हमारे कार्यों में, हमारे भावों में मोह की तीव्रता ना. काम करने का हमने सोचा है. सौरभ जी भी आपका आवाज कट हो रहा है. यहाँ सौरभ जी आपका आवाज बीच में कट गया था. It's still not clear. Okay. Hello, now is it clear? Hello. अभी तो आ रहा है सौरभ जी, लेकिन बीच में कट रहा था. So let's see. Okay. If it will just create disturbance, I will change the connection. Okay. तो अन्नमति वहां नहीं करते, तो कहा कि भाई वो नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन करें तो फिर वो उनकी कषाय मंद हो जाए. तो हम तो मोह की मंदता के कारण वीतराग तत्व ज्ञान का पोषण करते हैं, और हम उन्हीं अर्थों को बताएंगे आपको. इसलिए उसकी निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल करने से ही होती है. उनका सीधा सीधा लॉजिक है, हम मंगलाचरण इसलिए कर रहे हैं हमारी कषाय की मंदता हो. यदि हम मंगल कार्य ना करें तो हमारी कषाय की तीव्रता रहेगी, और जब कषाय की तीव्रता रहेगी तो ऐसा उत्तम कार्य, ऐसा बढ़िया काम. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फर्दर ही सेज वेल दिस इज एक्सेप्टेबल, बट हु डज नॉट परफॉर्म सच ओब्सियंस इज आल्सो सीन टू बी हैप्पी. The rise of sinful karma is not seen as someone who performs such obeisance in him. Also, happiness is not seen. Rather, the rise of sinful karmas is found. Therefore, how is it aforesaid auspicious possible? ये क्वेश्चन है उसका. हिंदी में इसको जो लिखा है वैसा लिखा है. ये अगर आप ऐसा मानेंगे तो जो मंगल बहुत सारे लोग मंगल नहीं करते उसके भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय दिखाई नहीं देता. और कोई ऐसा मंगल करता है उसके भी सुख दिखाई नहीं देता, पाप को उदय दिखाई देता है. इसलिए पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने. क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन रीजनेबल क्वेश्चन है कि आपने कहा ठीक है मंगल, हम तो कषाय की मंदता और निर्विघ्न समाप्त हो जाए ग्रंथ, इसलिए हम कर रहे हैं मंगलाचरण. लेकिन आप एक बात बताओ, अगर ऐसा मानोगे तो जो मंगल नहीं करता उसके भी सुख दिखाई देता है और पाप को उदय नहीं दिखता, और जो मंगल करता है उसके भी पाप को उदय दिखाई देता है. तो फिर ये मंगल पने करने का क्या काम.
आप बोलो निर्विघ्न की समाप्ति हो जाए. And surprisingly, मोक्ष मार्ग प्रकाशक itself is an example of this कि मंगलाचरण ने किया लेकिन इस ग्रंथ की समाप्ति नहीं हो पाई. Of course, Todamal ji did not know about what incidents would happen in future or is going to after 6 or 8 months. As you are aware that Todamal ji just could not complete this granth. The reason is very clear. The king of Jaipur was very just he was not very happy with Todamal ji because someone complained him about Todamal ji Tattviyan or about the explanation of other religion. So Todamal ji also was not aware about that. I will not also his granth. This is the caution कि अगर ऐसा मंगल नहीं मानेंगे तो कैसे होगा. उदाहरण यहाँ डिटेल बताया. ये जी बहुत आपका फेमस. वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत. ट्राई अभी करना अभी हो रहा है और क्या? अभी हो रहा है? सर जी अभी फिर आया है लेकिन बीच में तो हो गया था. अभी फिर से थोड़ा थोड़ा बीच में हो रहा था. हाँ, मुझे नेटवर्क दिख रहा है. नेटवर्क थोड़ा कम हो रहा है. कोई बात नहीं, मैं चेंज कर लूंगा नेटवर्क. ओके. हाँ. So क्वेश्चन इज दैट कि जो मंगलाचरण नहीं करते उनके भी पाप कोदय दिखाई नहीं देता और जो करते उनको पाप कोदय भी दिखाई देता है. तो ये कैसे? तो उसके लिए कहते हैं 3 प्रकार के परिणाम बताए. संक्लेश विशुद्ध जीवों के संक्लेश विशुद्ध परिणाम अनेक जाति के हैं. उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बांधे हुए कर्म एक काल में उदय में आते हैं. इसलिए जिस प्रकार पूर्वोक्त पूर्व में बहुत धन का संचय हो उसके बिना कमाए ही धन दिखाई देता है. You know, it's a very famous example. Even just we can read in English also. पढ़िए, कोई भी पढ़िए. ये कुंजन जी इसके पहले का पेज है, ये पढ़ते हैं अपन. The cruel, intense and अच्छा यही है पेज, यही है. ये है, इसी पेज पे तो है. द क्रूअल सेकंड पैरा, थर्ड पैरा. हाँ ये रहा सर. The cruel, intense, and ingenious mild instincts of jivas are of many types. The karmas bounded by them in the past in different times rise at one time. Therefore, for example, one who had accumulated lot of wealth in the past is found possessing wealth without earning and is not seen in debt. And the one who had taken a lot of debt in the past is found indebted even while earning wealth, and wealth is not seen. But on thinking, one finds that earning is always the cause of wealth only and not of debt. Similarly, the one who had bounded a lot of auspicious karmas in the past, he is seen possessed of happiness even without performing such obeisance, and the rise of sinful karmas is not seen. And the one who had bounded lot of sinful karmas in the past, he is not seen possessed of happiness even after performing such obeisance, and the rise of sinful karmas is seen. But on thinking, one finds that performing of such obeisance is assuredly the cause of happiness and not the rise of sinful karma. Thus, the auspiciousness of aforesaid obeisance is established. देखिए, the cruel it means intense and ingenious it means mild
instinct of the jivas are of many types. In Hindi, संकलेश और विशुद्ध परिणाम होते हैं जीव के, उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बांधे हुए कर्म एक काल में उदय में आते हैं. So karmas bounded by them in past in different times rise at one time. Therefore, for example, one who had accumulated a lot of wealth in past is found possessing wealth without earning and is not seen in debt. And one who has taken a lot of debt in the past is found indebted even while earning wealth, and wealth is not seen. So it's a very feeble example. I usually I just gave you this example. So जैसे कोई व्यक्ति पूर्व में बहुत धन का संचय किया हो और वो कमा नहीं रहा है अभी, लेकिन फिर भी उसका धन बहुत दिखाई देता है. सिंपल सा है, वो धन बैंक में रख देगा या कहीं भी. हेलो. हाँ सौरभ जी, बीच में आवाज कट ही गया था. Okay. So it is very famous example. Just there is a person who has accumulated lots of wealth and he is not earning. He's not earning. Actually, he is not earning, but he is not in debt. Even day by day he is growing. तो कहते हैं ना कि भाई वो पैसा जो है उसने इन्वेस्ट कर दिया, किसी में भी कर दिया, बॉन्ड्स में कर दिया, डिवेंचर में कर दिया, एफडी में कर दिया. मिनिमम इंडिया में तो एटलीस्ट मिनिमम 6-7-8% इंटरेस्ट तो जनरेट. सौरभ जी आप हैं क्या? आप म्यूटेड हैं. I'm here. Saurabh ji, should I call you and I can join you on Zoom?
I'm just changing this. Hello. हाँ सौरभ जी. It will be clear. I have Okay. changed the connection. Okay. It's very famous and my favorite. Your voice is breaking, right? किसी ने बहुत पैसा कमाया और वो बिल्कुल नहीं कमाता है तो भी उसके ऋण दिखाई नहीं देता, धन दिखाई देता है. But there is a person who is earning a lot, having lots of debt. So what he को दिखता नहीं. तो ऐसा मंगल नहीं करता, फिर भी उसे सुख दिखाई देता, दुख दिखाई नहीं देता. और एक व्यक्ति ऐसा है जो कि कुछ नहीं करता, फिर भी उसको सुख दिखाई देता है, क्योंकि उसके पूर्व में जो था उसका पुण्य बंध था उसको. तो जिसको पाप बंध था वो पूर्व वर्तमान में भले ही कितना पुण्य कर ले, लेकिन उसका जो पूर्व में पाप था वो तो उसका रिजल्ट तो आएगा. ऐसे पूर्व में जो पुण्य था वो भी रिजल्ट में आएगा. ये भले वो वर्तमान में पाप कर रहा है, कषाय की तीव्रता है, तो भी वो उदय में आएगा, ऐसा पंडित जी कह रहे हैं. हाँ, इस प्रकार उन्होंने कहा कि पूर्वोक्त मंगलपना नहीं बनता. Thus, the auspicious of aforesaid obeisance is established. Again he says, this is too accepted. पढ़ते हैं हम इसको आगे. पढ़िए कोई भी इसको आगे. Again he says, यहाँ से पढ़ते. आदर्श जी आप पढ़िए. Last paragraph. Again he says. हेलो. हेलो, आप लोग मुझे सुन सकते हैं? हेलो. जी सौरभ जी. हाँ सौरभ जी, थोड़ी बीच में कट रही थी आवाज, अब थोड़ी बेटर है. अच्छा ठीक. आदर्श यू देयर? हाँ इधर ही है. Again he says this too is accepted, but why the devas, celestial beings who are the devotees of Jin Shasan, omniscient rule, did not help the one who observed the obeisance and did not punish the one who did not observe the obeisance? हाँ, ये this is the question. This is also very logical question, and usually many people ask to me. Not exactly this question in this context, but in many contexts, many students ask in my different classes. वो ऐसा कहते हैं कि सर जब कोई पुण्य करता है, अच्छा काम करता है, तो उसकी देवलोक क्यों रक्षा नहीं करते? आप बोलते हो व्यंतर होते हैं और वो जिन धर्म की प्रभावना करने वाले होते हैं, तो वो क्यों रक्षा नहीं करते? वो उनको अगर कोई गरीब है, धनाधिक नहीं है, तो वो उनको धनाधिक क्यों नहीं देते? वो दे देना, उनको धनाधिक दे दे, उनको पैसा दे दे, उनको क्यों नहीं देते? वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, और यही सेम क्वेश्चन यहाँ किया हुआ है कि again he says this is too is accepted, but why devas, celestial beings who are devotees of Jin Shasana, did not help the one who observed the obeisance and did not punish the one who did not observe the obeisance? तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया होगा. दो क्वेश्चन हमारे
पहले। एक पहला क्वेश्चन था कि मंगलपना नहीं करता उसको, और दूसरा क्वेश्चन ये। तो चलिए मैं आप लोगों से कराई देता है, और कोई मंगलपना करता है फिर भी उसके सुख दिखाई नहीं देता है, तो इसका पंडित जी ने क्या आंसर दिया? बताइए कोई भी। प्रेरित जी, प्रीतेश जी, रोहन जी। क्योंकि because even our karmas have to be in Uday. Like when someone helps us or hurt us, they are the instrumental factor. They're the instrument through which the things are occurring, the act is occurring. But in reality, our karma, pap or punya, plays a main role into orchestrating that action. So here too, likewise, they can only help only when our punya uday, our auspicious karmas are in uday, or they will only hurt when non-auspicious karmas are in uday. So if our karma is not in uday, auspicious karma, then they cannot help. They will not even have a feeling of helping, or even if they want to help, they cannot. Yeah, this is remarkable statement. If there is your pap karma, so if some celestial being wants to help you, he will not be able to help you out in any way. I'm saying he will not help, but actual thing is that उसको भाव ही नहीं आएंगे, उसको आपको मदद करने के भाव नहीं आएंगे। So अल्टीमेट रोल जो प्ले करता है ना, वो हमारा कर्म प्ले करता है। और टोडरमल जी यहाँ इस प्रकरण में बहुत अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। Not in this प्रकरण, but in second unit, Todamal ji is going to discuss about only karmas. So he will just give you more clarification about how karmas work in a life, not in a life, but whole universe, whole world, whole human race, not only from Madhya Kshetra, but also Narak, but also Dev, any humankind, any Triyansh Gati, Narak Gati, they all are based on karma. So what they are gaining and what they are losing, what if they are in pleasure, if they are in sorrow, so all the result of karmas. So good, Pritesh ji. Okay, Pritesh ji, you are just saying something. Saurabh ji, this was Rohan. Okay, Rohan ji, please. I was telling something. So यहाँ पे एक बात और आई है ना सौरभ जी की, जो देव भी है उनके भी परिणाम अलग अलग चलते रहते हैं, जैसे मध्यस्थ परिणाम या कभी तीव्र परिणाम या कभी वो अपने अंतर्भाव में रहते हैं. So whenever they are inside them or they have a तीव्र परिणाम, in that scenario they will not help you out. But only when they have like madhyasth parinam, then only they will try to help you out. But again, that depends. So eventually, having all said that, it all depends upon your karma, because karma has 4 type of sthitikaran, anubhag. So based upon what karma which I have got, और उसका भी मिश्रित परिणाम आएगा. ऐसा नहीं है कि मैंने जो 200 साल पहले परिणाम कर्म मतलब अपने लिए बांधे थे वो एक वैसे की वैसे उदय में आए, क्योंकि उसमें पाप पुण्य सबका बंद हुआ है, तो वो भी उस समय कैसे बन के आते हैं उसका भी मिश्रित परिणाम रहेगा. तो उसके बेसिस पे ही उस समय के कौन मेरे लिए हेल्प करने आ रहा है या कौन मेरा निमित्त बन रहा है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनेगा उस समय, वो सब डिपेंड करेगा उस स्थिति में. Okay, good. There are many people, they doubt on Jainism only on this fact. So one thing I'm just unable to understand, since long time I'm doing this, I'm following this religion, even doing puja, just donating something, helping someone, and just distributing shastras to many people. But I'm unable to know one thing. मैं इतना करने के बाद भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये बुरा क्यों हुआ मेरे साथ? तो मैंने कहा आपने सब किया लेकिन स्वाध्याय नहीं किया. अगर आप स्वाध्याय करते ना तो आप ये क्वेश्चन पूछते ही नहीं मेरे से. मैं इतना सब कुछ बढ़िया किया, मैंने इतना पैसा दिया, दान दिया, ये किया, अब मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा? ये वो खुद का नहीं पूछते तो दूसरे का पूछते हैं, उसके साथ क्यों हुआ ऐसा?
तो मैं कहता आप ये सब नहीं करते ना, केवल शास्त्र पढ़ते आप, तो इसका आंसर आपको मेरे से पूछने की आवश्यकता नहीं थी। अंततः होता क्या है, इवेंचुअली योर कर्मा विल डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग। तो ऐसे ही मंगलाचरण में टोडरमल जी सेइंग इन वेरी क्लियर वे, question is that there are many celestial beings, so why they are not helping those people who are good, or why they are not punishing those people who are not good? It is question, and this question is very natural in the mind of any ordinary people. हम इतना धर्म कर रहे हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? मतलब मैं तो सैकड़ों लोगों से क्वेश्चन सुन चुका हूँ, उनको आंसर भी दे चुका हूँ। मैं उनको ये बोलता हूँ कि देखिए ये अलग अलग चीज है, आप मिलाइए मत। धर्म आप वर्तमान में कर रहे हैं, लेकिन जो उदय आपका है ना, ये पूर्व के बांधे हुए कर्मों का उदय है। आप मिलाइए मत, इससे धर्म बुरा नहीं हो जाएगा। पाप का उदय अलग है, और ये पाप का उदय तो ऐसा है कि जिन तीर्थंकरों के भी जीवन में आना था, जिन चक्रवर्ती के उसी भव से मोक्ष जाने वालों के जीवन में आना था, वो तो आया, आएगा, वो टाला नहीं जा सकता किसी प्रकार से, टाल नहीं सकते। जब वो नहीं टाल सकते, देयर इज अ लाइन, देयर इज अ फेमस लाइन, तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, हमें क्या करना। वो खुद अपना उदय नहीं टाल पाए, तो आप फिर क्या अपेक्षा करते हैं कि कौन टाल पाएगा उदय को? कोई नहीं टाल सकता उस उदय को। You know, this principle can provide a ultimate light of our liberation और मोक्ष। हमें आकुल व्याकुलता ऐसी चीज की रहती है ना, कोई बुरा ना कर दे, कोई मदद करने वाले हमारे साथ रहें, ये ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, हमें दिन रात यही चिंता होती है। यहाँ क्वेश्चन पूछे ही उसने, ऐसे ही पूछा, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। ऐसा क्यों होता है कि वो जो मंगलाचरण करने वाले हैं उनको वो दंड नहीं देते, वो सहायता नहीं करते, वो जो नहीं करने वाले उनको दंड नहीं देते? आंसर पढ़ते हैं अभी जो टोडरमल जी ने दिया है, पढ़िए आदर्श जी, आंसर पढ़िए। The people, the predominating factor The predominating factor. The predominating factor of jivas getting pleasure and pain is the rise of their own karmas. According to that, only the external instrumental causes are met with. So the one whose sinful karmas are in rise, operative state, does not get help rendering cause, and the one whose pious, auspicious karmas are in rise, operative state, does not get the punishment rendering cause. How Okay, such perfectly good answer दिया है टोडरमल जी ने कि the predominating factor of जीव getting pleasure and pain in the rise of their own karmas. इस जीव को जो भी इसको जो फल मिलता है, वो फल मिलता है या जो भी इसके साथ होता है, वो इसके सुख दुख के उदय से ही होता है। सुख दुख जो भी होता है, इसको इसके कर्म के उदय से ही होता है, और उसके अनुसार ही निमित्त बनते हैं। उसका जो निमित्त बनेगा ना, वो किसके अनुसार बनेगा? उसके अनुसार ही बनेगा जो उसने पूर्व के परिणामों से कर्मों का बंधन किया था। पूर्व के परिणामों से जो कर्मों का बंधन किया था, उसके अनुसार ही निमित्त बनेगा। There is a one श्लोक, यादृशी जायते बुद्धि तादृशी भवितव्यता, सहायस्तादृशा सन्ति यादृशी भवितव्यता। इस जीव की बुद्धि वैसी ही होती है जैसी इसकी भवितव्यता होनी हो। जैसी इस जीव की भवितव्यता होनी हो, वैसे ही सहायक मिलते हैं इसको, वैसी इसकी बुद्धि हो जाती है। तो यहाँ कहा ना कि वैसे ही निमित्त मिलेंगे इसको, इस जीव की। देखिए, पहले तो हम लोग एक बात मानना छोड़ दें कि अगर कोई धर्म का कार्य हो रहा है तो उसमें विघ्न नहीं आएगा। आ सकता है, क्योंकि अलग अलग है दोनों चीजें। वर्तमान में हमारे परिणाम अलग है। कोई धार्मिक व्यक्ति है, उसके पाप को उदय नहीं आएगा, ये गलत है। अगर हम ऐसा मानते हैं, सोचते हैं, तो गलत है।
वर्तमान में जो उदय है वो पूर्व के द्वारा बांधे गए कर्मों का रिजल्ट है। हाँ, इन फ्यूचर आप वर्तमान में जो कर्मों को बांध रहे हैं ना, वो जरूर आप बोलेंगे फ्यूचर में उदय में ना आए, तो वो अपन कह सकते हैं कि फ्यूचर में उदय में नहीं आएंगे। लेकिन आप कहें वर्तमान में क्यों हो रहा है ऐसा, तो दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। तो यहाँ कहा एक कर्म का बंधन ही एक ऐसा एकमात्र कारण है जो आपके सुख दुख का निर्णय करता है। So the predominating factor of jeev getting pleasure and pain in the rise of their own karmas. According to that, only whose sinful karmas are in run, whose pious karma नहीं मालूम, कर्म अजीब हैं। वो कहते हैं हमें कोई व्यक्ति नहीं मालूम, हमें तो ये मालूम है कि अगर हम पुण्य के कर्म क्या बोलते हैं, हम किसी खराब व्यक्ति के साथ भी है ना, तो हमारा तो जो नेचर है ना, हम नहीं छोड़ेंगे। खराब व्यक्ति भले ही है, लेकिन हमारा तो जो काम है वो हम करेंगे। और अच्छा व्यक्ति है और पाप के कर्म ये बोलते हैं, ये व्यक्ति भले ही अच्छा होगा, लेकिन हम अपना नेचर नहीं छोड़ेंगे। हमारा काम इसको विघ्न बाधाएं पैदा करना है। तो इस चीज से हम एक अपनी लाइफ का भी लगा लें। मैं भी आप लोगों से पूछने वाला भी हूं कि when this is the principle that what is happening in your life, good and bad, is result of only your karmas. That day by day, why we are in so stress, why we are repenting on those things. oh मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, अब ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, उसने मेरे से ऐसा क्यों कह दिया, why he has behaved, why he or she has behaved with me in this manner. He or she does not have any right. मैं देख लूंगा उसको, मुझे भी मौका मिलने दो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या दुनिया में मैं ही हूं, मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। तो टोडम जी ने इसका आंसर दिया। तो मैं अब आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या हमें ये प्रिंसिपल क्लियर है कि what is happening in our life, good or bad, the result of only our good or bad karmas, और हम उसको बदल भी सकते हैं अगर चाहें तो। हाँ प्रतीक जी, आप बता सकते हैं। जी सौरभ जी, क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ, क्वेश्चन ऐसा है कि द प्रिंसिपल इज दैट व्हाट इज हैपनिंग इन लाइफ, गुड और बैड, इज अ रिजल्ट ऑफ आवर कर्मास। दिस इज द प्रिंसिपल। तो क्या हम इसको बदल भी सकते हैं क्या? अगर हम इस प्रिंसिपल को नहीं मानेंगे तो इससे क्या प्रॉब्लम आने वाली है? अगर इस प्रिंसिपल को नहीं मानेंगे तो then we may end up with lots of contradictions in our daily life if we do not realize and understand this concept that it's not what you're doing today is giving you the results, it's your deeds from the past. Unless and until we realize that, because every time we work hard we would expect to be successful. Every time somebody will be successful, majority will fail actually. So unless and until we realize this, we're going to be upset, unhappy, restless. We're not going to trust anybody, and will just lead us down in a downward spiral. But when we realize that if I do good, even if the outcomes right now are bad, eventually I will get the positive outcomes of this. If we have it pretty clear in our head, then we won't be bothered by anything that is happening, good or bad currently, and we will get to be we'll be able to stay in a neutral state, madhyasth bhav, regardless of the situation, because we are pretty clear why the things surround us are happening and what are the causes of it. Okay, good. This is the principle, but we usually discuss about stress. So why people are in stress? Because they're not following, or they are not aware about this principle. What good or bad is happening in our life is a result of our karma. This is the principle. लेकिन हमारे लौकिक में तो ऐसी चर्चा होगी। लौकिक में चर्चा का ये रहेगा, आपने खाना खाया कि नहीं खाया,
आपको भूख लगी होगी, आप खाना खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सारी चीजें हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। मेन प्रॉब्लम बाहर की किसी की भी नहीं, आपको पता है। प्रॉब्लम जो है वो सबके अंदर की मान्यता की है। इंडिया में कितनी सारी घटनाएं आती हैं कि सडनली उनके पति मर गए तो पत्नी ने सुसाइड कमिट कर ली, या पत्नी को कुछ हुआ, फैमिली को कुछ हुआ, माता पिता को कुछ हुआ, तो वो बेटा या बेटी मर गए, अब हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, हमारा क्या होगा। तो वो सडन इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, इतने प्रॉब्लम में आ जाते हैं। मैं इस बारे में सबको ऐसा बोलता हूँ कि व्हाट वी आर सीइंग इन दिस वर्ल्ड, दैट इज नॉट रियल। जो हमें दिखाई देता है ना, वो होता नहीं है, और जो है वो उनको दिखेगा जो स्टडी करेंगे, उनको दिखेगा जो रिसर्च करेंगे। हमें क्या दिखता है कि दैट पर्सन इज सो पावरफुल, ही कैन चेंज एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग, ये दिखता है। एक्चुअली बात ये है कि अभी उसका उदय अच्छा है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है। I'm just giving you a simple example in my wealth management field. There is one investor who is called a secret investor. It is very famous in Mumbai Dalal Street. So name of that investor is Sadanand Mankekar. You will find a story on internet. It's a very famous person. He's not very famous due to wealth. He's very famous because he's a teacher, He's a teacher, he's a professor. And in India, professor, how much salary he just can get? 75,000, 1 lakh. Maximum amount is 2 lakh. Any professor, any teacher cannot get more than 2 lakh. Okay. But you will surprised to know, though he is getting 2 lakh salary, 3 lakh salary, and he's a millionaire, not billionaire. He is not millionaire, but billionaire. One day, some a Patrakar just came suddenly in his house to take interview. तो पड़ोसियों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्यों आए? बोले आपको नहीं पता? बोले क्या? बोले ये जो आपके सदानंद जी हैं, ये तो मिलीनियर है, बोले इंडिया के। बोले क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? हम इनको बचपन से देख रहे हैं, इनको स्कूटर से रोज जाते हैं, अपने कॉलेज जाते हैं, कार भी नॉर्मल है, कार से जाते हैं, नॉर्मल लोग हैं, तो सामान लोग हैं। नहीं, यू आर नॉट अवेयर अबाउट हिम। He is a person who is having wealth more than 1,000 crore. It is in our knowledge because he is having more than 2% holding in a company. That's why the company has to declare his name, because it is the rule of government. If an individual investor is holding more than 2% shares of that company, so company will disclose the name. Then it has come into our knowledge that there is a person who is having wealth of 1,000 crore, and he is so simple. Then he came और पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया, उसने बहुत सिंपल वर्ड्स में बोला, I am a common man, I don't want to be so special, please respect my secrecy, please respect my privacy. इतना कहा उसने। सबको ये लगा ऐसा कैसे हो सकता है? A person who is having wealth more than 1,000 crore, मतलब वो 2,000 करोड़ का भी हो सकता है, वो तो 100 करोड़ के बंगले में रहेगा, 50-60 करोड़ की गाड़ियां रहेंगी, लग्जरी लाइफ जिएगा, एकदम ऐसा कि अखबार की सुर्खियों में रहेगा। वो उसको 12, 15, 20 करोड़ का तो डिविडेंड आता है साल का। डिविडेंड मीन्स कुछ होता ही नहीं है। वो बोलता है कि आई एम एंजॉयिंग इन स्टडी ओनली, मुझे पढ़ने पढ़ाने मजा आता है, मैं वो काम कर रहा हूँ अपना। मेरे पिताजी ने सिखाया था, बेटा इन्वेस्टमेंट करते जाना, रुकना मत कभी। मैं कभी मार्केट से आउट नहीं रहा। मैं क्या बता रहा हूं आपको, वो हम जो देखते हैं ना वैसा होता नहीं। संसार जो दिखता है वैसा है नहीं। जो अमीर लोग सुखी दिखाई देते हैं ना, वो है नहीं। ये प्रोफेसर साहब दुखी दिखाई देते थे। दुखी इन द सेंस, देखो जिंदगी भर निकल गई इनकी, स्कूटर से ही जा रहे हैं, छोटी सी कार खरीद पाए, इसी फ्लैट में पड़े हैं, जिंदगी निकल गई पढ़ाते पढ़ाते, क्या लाइफ है इनकी। हम देखो हमारा बेटा अभी कमाना चालू किया, प्रोफेसर साहब को जिंदगी निकल गई, 2 लाख महीने कमा रहा है। मेरा बेटा अभी से 4 लाख महीने कमा रहा है।
ऐसे ही हमें जो दिखता है ना कि लोग चेंज कर सकते हैं, या हमें कभी ऐसा फील हो कि हम व्यवस्था को चेंज कर सकते हैं, आई कैन चेंज माई लाइफ, I can change what incidents are happening or happened in my life. I can change. No, you cannot. You can't. Neither we nor anyone. Though we are Swadhyay, so this fact is very clear for us that what good and bad, what is happening in our life, that is the result of our old karmas. But those who are ordinary people, in day-to-day life, I just mad. I am meeting with so many persons, so several personalities I'm meeting. They're in so depression. They're restless. They share their thoughts with me. Surabji, I'm restless. I don't know why. I'm having all belongings. I'm having plenty of money. But I think I could change that. But why I did not change? I'm trying to change the nature of my son. I'm trying to maintain the healthy environment in my family. I don't know why I'm unable. I wanted to obtain that thing, but I could not get that thing. Then I told him, right now I cannot give you an answer, but my advice is that you must do Swadhyay. Then you will find all answer of your questions. कि मैं पहले तो सब कुछ बदल लेता था, बदल क्यों नहीं पा रहा हूं? पहले मैं जैसा चाहता था वैसा हो जाता था, अब क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? पहले मेरे बेटे, मेरे घर वाले, रिश्ते सब मेरा कहना मानते थे, अब क्यों नहीं मानते? मैं इतना हेल्दी भोजन करता हूं, फिर बीमार क्यों रहता हूं? तो मैं सब लोगों को सेम एडवाइस देता हूं, जो दिखता है वो सत्य नहीं होता। आपको ऐसा दिखता था, यू कैन चेंज एवरीथिंग, यू आर चेंजिंग और यू हैव चेंज्ड। एक्चुअल ऐसा नहीं है। मतलब मैं आई एम फ्रॉम वेल्थ मैनेजमेंट फील्ड एंड यूजुअली आई एडवाइज पीपल दैट यू मस्ट मैनेज योर वेल्थ इन गुड मैनर विद नॉलेज। बट मुझे ये सिद्धांत पक्का है, मैं किसी को कितनी अच्छी सलाह दे लूं, मैं किसी का कितनी अच्छा पोर्टफोलियो हमारी कंपनी मैनेज कर ले, काम उसके उदय से ही होगा। मेरा काम मेरे उदय से होगा, आपका काम आपके उदय से होगा। किसी को मान करने की आवश्यकता नहीं। टोटल जी एकदम क्लियर प्रिंसिपल बता रहे कि वो जो भी अच्छे व्यक्ति के साथ आप बोल रहे बुरा हो रहा है ना, कोई सहायता नहीं कर रहा है देव उसकी, तो बोले वो उसके पूर्व के पाप का उदय है, इसलिए सहायता नहीं कर रहा है, क्योंकि उस उदय के अनुसार ही बाह्य निमित्त मिलते हैं, और जिसका पुण्य का उदय है उसको दंड नहीं मिल रहा है। ये तो सबकी शिकायत है। देखिए ये वो नेता करप्ट है, वो व्यक्ति करप्ट है, लेकिन उनके साथ तो बुरा हो ही नहीं रहा है। जो अच्छे व्यक्ति है उनके साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन चीज है जो सब लोग सोचते भी हैं और डिस्कस भी करते हैं। लेकिन प्रिंसिपल यही है कि व्हाट यू आर हैविंग इज कैनॉट बी चेंज्ड, but due to all is happening due to your old karmas. Now how such instrumental causes is not met with is being explained. So वो निमित्त कैसे नहीं बनते वो बता रहे हैं कि वो देव जो है ना, जिनकी सेलेस्टियल बीइंग की बात हो रही थी कि वो देव हैं, वो निमित्त कैसे नहीं बनते, how such instrumental cause is not met with is being explained. पढ़ते हैं आगे, पढ़िए प्रेरित जी, आप पढ़िए इसको। The Deva, यहाँ से right? How such instrumental causes not met, which is being explained. The Devas, celestial beings, cannot know everything simultaneously due to Shivaksham Gnan, destruction come subsidence type of knowledge. Hence, knowing of the person observing obeisance and not observing obeisance takes place rarely to some celestial being, etc. So, if they do not know them, how could they help or punish? And if they know them, then if their passion be extremely feeble, then instinct of helping or punishing does not arise. And if the passion be intense,
then religious feeling cannot arise. If passion for involvement in such act be of average degrees, and one may not have power, then what can he do? In this way, the instrumental cause of rendering help or giving punishment does not materialize. यहाँ बताया है कि एक तो वो देवादिक जो है ना, क्षुब्सम ज्ञान से सबको युगपद नहीं जान सकते. In English, the devas, celestial beings, cannot know everything simultaneously due to क्षुब्सम ज्ञान. है ना, वो क्षुब्सम ज्ञान के कारण से एक तो सबको एक साथ नहीं जान सकते. Hence, knowing of a person, observing, obscience, and the one not observing obedience take place rarely to some celestial beings, etc. मतलब वो ये बोल रहे हैं कि एक तो मंगल करने वाले को नहीं करने वाले का जानपना किसी देवादिक को किसी काल में होता है. अब उसको ऐसा लगाएं कि किसी काल में किसी देवादिक को क्यों होता है, क्या कारण है? तो जिसका जैसा उदय होता है उसके अनुसार होता है. जिसका उदय अच्छा होता है आसमान से निमित्त उतर कर आते हैं, और जिसका उदय अच्छा नहीं होता है सामने निमित्त विराजमान होने पर भी वो समझ नहीं पाते. तो वो एक तो देवों को एक साथ जानना नहीं हो सकता क्योंकि उनका क्षुब्सम ज्ञान है. वो देव एक साथ नहीं जान सकते क्षुब्सम ज्ञान से. दूसरा, कदाचित किसी देव को जानपना हो तो वो देव मंगलाचरण करने वाले को और नहीं करने वाले को, पुण्यात्मा को और पापी आत्मा को, वो एक साथ नहीं जान सकते. देखिए यहाँ भगवान की बात नहीं हो रही, यहाँ देव जो देवगति के जीव है ना, जिनको अपन व्यंतर बोल सकते हैं, वैमानिक बोल सकते हैं, उनकी बात हो रही है. भगवान में तो ये अप्लाई होगा ही नहीं. भगवान तो किसी की सहायता करेंगे ही नहीं, वो किसी को दंड देंगे ही नहीं. इट इज इम्पॉसिबल. बियॉन्ड द नेचुरल रूल आर गॉड, omniscient God, सर्वज्ञ वीतरागी देव, will not punish anyone, will not reward anyone, because he is Vitragi. But what we are talking about देव गति के जीव, जो देव गति के जीव हैं उनकी बात है. तो यहाँ पंडित जी ने लॉजिक दिया कि एक तो वो क्षुब्सम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते, और मंगल करने वाले को और नहीं करने वाले को जानपना किसी देव को किसी काल में होता है. तो अब उनका जानपना ना हो तो कैसे सहाय करें और कैसे दंड दें? मतलब वो दोनों बातें हैं कि अब उनको अगर जानपना हो, वो जाने तो सहायता करें ना, वो जाने तो दंड दें. वो मतलब टोडमल जी यहाँ एक प्रोसीजर बता रहे हैं. वो प्रोसीजर ये बता रहे हैं कि वो क्यों नहीं होता है. He is telling reason, he is telling procedure why that is not happening and why that is happening. तो कह रहे एक तो वो जानपना होता नहीं है, और अगर चलो जानपना हो भी जाए तब स्वयं को जो अति मंद कषाय हो तो सहाय करने और दंड देने के परिणाम ही नहीं होते. अब वो खुद ही बहुत मंद कषाय है. मतलब वो देव है ना, वो खुद ही देवता आदमी है. देव है वो देवता आदमी, मतलब उसकी खुद की कषाय इतनी मंद है कि उसे मतलब ही नहीं है कि मैं उसको दंड दूं और मैं उसकी सहायता करूं. देखिए इस बात से किसी को कभी जैन दर्शन से नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग करते हैं. वो तो इतना धर्म करते हैं, वो तो इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, उनके साथ क्यों हो रहा है, हमारा तो धर्म से विश्वास उठ गया, कोई देव उनकी सहायता क्यों नहीं करता, मैं संकट में आया तो किसी देव ने सेवा मेरी सहायता क्यों नहीं की, मैं करना चाहिए, वो साधर्मी वात्सल्य बताने आ जाते. तो यहाँ कहा ना, पहले तो वो सबको जान नहीं सकते. क्षुब्सम ज्ञान है उनका भी, वो तो अवधि ज्ञान लगाए तो जान सकते हैं. अब मान लो जानपना भी हो गया उनको, तो अगर उस देव की स्वयं की कषाय अति मंद है तो इतनी अति मंद कषाय में तो उसको भाव नहीं आने वाले, उसको खुद को ही भाव नहीं आने वाले. तो कह रहे हैं यहाँ की सच क्षुब्सम ज्ञान, hence knowing of person, observing obeisance, and one not observing obeisance take place rarely to some celestial being, etc. So if they do not know them, how could they help or punish? And if they know them, then if their
patient to be extremely feeble, and then the instinct of helping punishing does not arise. If the patient be intense, then religious feeling cannot arise, and if the patient for involvement in such act be average degree, and one may not have power, then what can he do? मतलब कितने सारे लॉजिक उन्होंने दे दिए कि एक तो उसकी जानपना नहीं हो, चलो एक बार जानपना हो गया, हम ऐसा मान लें कि उसने देख लिया, अब उसकी भी बहुत कषायमंद है, तो उसको भाव ही नहीं होंगे, ना दंड देने के भाव होंगे, ना उसको रिवॉर्ड देने के होंगे। अब अगर तीव्र कषाय हो मान लो, तो तीव्र कषाय हो तो वो फिर उसको कोई धर्मानुराग ही नहीं रहेगा, उसको धर्मानुराग नहीं रहेगा कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है, मैं इसकी मदद करूं, करना चाहिए। अच्छा, अब अपन कहते हैं एक मध्यम कषाय हो जाए। एक तो मंद कषाय थी तो उसने किया नहीं, तीव्र कषाय है तो उसमें कर नहीं सकता क्योंकि वो तो पाप के परिणाम है तीव्र कषाय में। तो अब मध्यम कषाय रूप कार्य करने के परिणाम हुए। अब एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी कषाय मध्यम है, न तीव्र है न अति मंद है, उसकी परिणाम उसकी कषाय अति मंद है, बट ही इज नॉट हैविंग पावर। उसको करना चाहता है, देवों में भी तो पावर होते हैं ना, अलग अलग रिद्धियां होती है ना, वहां डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, पूर्व में आपने जैसा कर्म बांधा उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आपको वैसी रिद्धियां, वैसी सब चीजें वैसी मिलेंगी, जैसा पूर्व में आपने बांधा वैसा ही आपको मिलने वाला है। तो वहां उसने जान भी लिया, मध्यम कषाय के कारण से जान भी लिया, लेकिन उसे क्या बोलते, उसमें शक्ति नहीं है वो उसको सहाय करने की या दंड देने की। तो ये यहाँ हमारा जो चैप्टर चल रहा है मंगलाचरण करने का कारण चल रहा है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और एक बात मैं आप लोगों को जरूर बोलना चाहूंगा कि पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से हम लोग समझेंगे ना, thousands and thousands of motivational books cannot change your thoughts and life, but only one single shastra written by Todomil ji can change your life, even view, even everything. जब वो सिद्धांत को लॉजिक से समझा रहे हैं ना, तो हमें एकदम चीज क्लियर हो गई कि हाँ ऐसा ही है। अब हम कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे कि हम तो धर्म कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो आप लोगों को समझ में आया कुंजन जी, पूरा मैटर समझ में आया? हाँ कुंजन जी। जी हाँ सौरभ जी, सौरभ जी इसमें जो एक क्वेश्चन जो आता रहता था पहले कि देवगति के जब चाहे तो हमारी मदद क्यों नहीं कर सकते, तो उससे आप बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन भी। हाँ, सब लोग ये सोचते हैं ना देवगति के जीव हमारी मदद करने आएंगे, क्यों आएंगे? बताया ना टोडमल जी ने, क्यों नहीं आएंगे। कभी किसी की की होगी, कभी किसी की की होगी, डजंट मीन कि आपकी करने आएंगे वो। तो यहाँ बहुत सारे लॉजिक दिए हैं और ये सारे समझना हमें बहुत आवश्यक है। इस तरह से हमारा आज का ये प्रकरण रहा मंगलाचरण करने का कारण। और आप लोग खुद भी पढ़िए, चिंतन कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिए मेरे से, है ना। हम अभी आज की क्लास यही खत्म करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम क्लास स्टार्ट करेंगे आगे का प्रकरण जो है। बाकी इट इज माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, आफ्टर क्लास you must have the habit to read personally this Granth, because this Granth I cannot explain in 1 hour in complete way. You yourself will have to study this Granth to understand in accurate manner. Then some questions may arise in your heart, or if you are having any question, automatically you will get answer at the time of reading. ये ग्रंथ की एक विशेषता ऐसी है कि आप जितनी बार इसको पढ़ेंगे आपको लगेगा कि मैं हर बार कुछ ना कुछ नया मिल रहा है मुझे इसमें, ये पिछली बार मैं कैसे भूल गया, समझना हर बार कुछ नया मिल रहा है, ऐसे इस ग्रंथ की विशेषता है। आई होप आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे।
चलिए हम लोग जिनवाणी स्तुति लेते हैं। हाँ लीजिए कौन जी। निज निधि निज में बता भाई यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। जय जिनेश्वर जी, जय जिनेश्वर जी। अरे जय जिनेंद्र सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सभी को। Thank you.